Hello everyone. Hello my dear students. I hope that you all are very healthy in this very tough time. Clear? Last time student I have started the chapter sexual reproduction in the flowering plant. I have discussed the structure of the anther, structure of the microsporangium. Clear? In this video student I am just going to explain you the process of microsporogenesis. क्लियर? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को समझाया था माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर. अब थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं स्टूडेंट. यू कैन सी हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. These are the wall layers. So starting from the outermost layer is the epidermis. ये सिंगल सेल थिक कवरिंग होती है. देन आफ्टर द एंडोथीसियम की लेयर, देन 2 to 4 cell thick middle layer is there. Then innermost layer of the wall layer is the tapetum. tapetum की सेल्स डिप्लॉयड होती है स्टूडेंट और पॉलीप्लॉयड भी होती है. दिस इज अमीबॉयडल सेल्स. क्लियर? दीज आर मल्टीन्यूक्लिएटेड आल्सो. कभी कभी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है. क्लियर? दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस लेक्चर. क्लियर? The cells of the tapetum are responsible for providing nourishment or the nutrient to the developing pollen grain. Clear? Here student, हमारा आज का जो टॉपिक है that is the microsporogenesis. Clear? So the cells which are there inside the microsporangium, these are called as the sporogenous tissue. Clear? जब young anther रहता है तो each cells of the sporogenous tissue is the you can say it's the spore mother cell. Clear? It has the ability to give rise to the pollen grain. Clear? The cells of the cells of the sporogenous tissue is known as microspore mother cell or pollen mother cell. Clear student? So let me begin with the definition of the microsporogenesis. Clear? What is microsporogenesis? Microsporogenesis is a process of formation of microspore or pollen grain from the microspore mother cell. Clear student? Microspore mother cell आप देख सकते हो. This is diploid in nature. Clear? Each microspore mother cell or pollen mother cell is diploid in nature and is the meiocyte. Clear? It is the meiocyte. मतलब the cells which undergo meiosis they are called as the meiocyte. केवल यहीं पे meiosis होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में. Clear? At the time of gamete formation. Clear student? So now let us see this meiocyte or the pollen mother cell or microspore mother cell undergoes meiosis and form the pollen tetrad. Clear? meiosis फर्स्ट हुआ 2 सेल बनी, then meiosis सेकंड हुआ 4 सेल बनी. Clear student? So at the end of microsporogenesis 4 pollen grains are produced or the formed. These remains in the cluster of 4 generally and this is called as the pollen tetrad or the spore tetrad. Clear student? Now I would like to tell you something about the kind of pollen tetrad. तो आप देखोगे कि pollen tetrad जो यूजुअल जो होता है मोनोकॉट में वो आइसो बायलेटरल होता है. आप देख सकते हो ये शेप स्टूडेंट. और जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें टेट्राहेड्रल pollen tetrad होता है. और दो और टाइप के होते हैं लीनियर. आप देख सकते हो ये शेप है और टी शेप. ये अनयूजुअल होता है. दिस इज द अनयूजुअल टाइप. ये जनरली ऐसा बहुत कम में होता है बट होता है. क्लियर? और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप देखोगे स्टूडेंट ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है. ये दो तरीके से होता है. आप देख सकते हो यहाँ पे एक होता है सक्सेसिव टाइप और दूसरा होता है साइमल्टेनियस टाइप. ये वॉल फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है. मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट हुआ तो 2 सेल के बीच में वॉल फॉर्मेशन हो गई. फिर मियोसिस सेकंड हुआ तो इस तरह से हर बार जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो वॉल फॉर्मेशन होता है. दिस इज कॉल्ड एज द सक्सेसिव टाइप. और यहाँ पे आप देखोगे पहले न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होता है उसके बाद में फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और कैलोस का फॉर्मेशन होता है. यानी ये जो पोलन आपस में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट एक दूसरे से वो कैलोस की वजह से जुड़े हुए होते हैं. Clear? So this is about the microsporogenesis. Clear? Now student come to the another topic that is the development of the pollen grain. Clear? Development of the pollen grain is different from the microsporogenesis. Clear? आप देख सकते हो microspore that is the N.
or the pollen grain, that is the N. Yani this is the result of meiosis. Clear? Now each microspore undergo enlargement. Clear? It enlarges in its size. This is called as the enlarged microspore. Now here you can see unequal division takes place here because of the asymmetrical spindle. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो डिवीजन होता है ये asymmetrical spindle की वजह से unequal division हो जाता है, and thus result in the formation of a two-celled pollen grain. Clear student? The larger cell is called as the vegetative cell and the smaller one is called as the generative cell. खास बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि द generative cell, the smaller cell, remains suspended in the cytoplasm of vegetative cell. Clear? And the vegetative cell, it provides nourishment to the डेवलपिंग मेल गैमीट. आगे देखोगे आप जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड करके माइटोसिस डिवीजन करके दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है. क्लियर? और इन दोनों मेल गैमीट को न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड करता है दैट इज द वेजिटेटिव सेल. क्लियर स्टूडेंट? अब एक चीज और है, आप 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस और एट द टाइम ऑफ रिलीज द pollen grains are in two-celled stage. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. और 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब pollen grain एंथर से रिलीज होते हैं तो वो 3-celled स्टेज में होते हैं. 3-celled में कौन कौन सी होती है? एक सेल वेजिटेटिव सेल है एंड द अदर 2 cells आर द 2 मेल गैमीट्स. और जब 2-celled स्टेज के अंदर यू कैन सी द लार्जर वन इज द वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर इज द जेनरेटिव सेल. क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द pollen grain. Clear? Now let me explain the structure of pollen grain. Student आप देखोगे pollen grain varies in shape and the size according to the species. अलग अलग plant species में अलग अलग shape और size के pollen grains होते हैं. Clear? The largest one of the mirabilis ये 200 micron का होता है. Then smallest is of मायोसोटिस ये 2.5 to 3.5 माइक्रोन का होता है. लॉन्गेस्ट जो होता है स्टूडेंट ये ज़ूस्टेरा होता है. ज़ूस्टेरा इज अ सी ग्रास. क्लियर? अब आप देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है. सरफेस व्यू में जब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं पॉलन ग्रेन को तो वो थोड़ा सा रफ अपीयरेंस होता है. क्लियर? अगर आप हिबिस्कस के पॉलन ग्रेन को आप देखोगे तो पाउडरी टाइप का होता है. डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में आपको रफ अपीयरेंस दिखाई देता है. और पॉलन ग्रेन का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है. डिफरेंट काइंड डिफरेंट शेप के पॉलन ग्रेन्स होते हैं. बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन की पॉलन ग्रेन्स होते हैं. क्लियर? दे में बी ओवल, दे में बी स्फेरिकल, दे में बी इलेप्टिकल, दे में बी इलोंगेटेड. डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स होते हैं स्टूडेंट. क्लियर? अब देखो ये तो मैंने एक्सटर्नल अपीयरेंस बताया. सरफेस व्यू में रफ होता है, कांटे जैसा दिखता है. बट इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो वी कैन सी व्हाट we can see each pollen grain is surrounded externally by a very tough and the rigid covering called as the exine. यहाँ पे आपको ध्यान देना है the chemical nature of exine is sporopollenin. This is very much important from examination point of view and competition point of view. Clear? This is the naturally occurring highly resistant chemical students. क्लियर? आप ध्यान रखिएगा कि देयर इज नो एनी नेचुरल एंजाइम व्हिच कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करने के लिए कोई नेचुरल एंजाइम नहीं होता है. दैट इज व्हाई द पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड. क्लियर? एज अ फॉसिल. क्लियर? जस्ट नेक्स्ट टू द एक्साइन देयर इज अ लेयर ऑफ इंटाइन. इंटाइन थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है. क्लियर? एंड केमिकली इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. क्लियर स्टूडेंट? एंड थर्ड आप यहां देखो जगह जगह पे एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन नहीं होता. देयर इज द गैप वेयर दिस गैप इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द स्पोरोपोलेनिन एंड इज कॉल्ड एज द germ pore. This is called as the germ pore. This is the place, this is the pore through which at the time of pollen germination the pollen tube comes out. The intine comes out in the form of pollen tube through the germ pore. Clear student? और ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है. एक वेजिटेटिव सेल है और एक जेनरेटिव सेल है. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द पॉलन एलर्जी. क्लियर स्टूडेंट? पॉलन ग्रेन्स
these are very much important as they also cause the pollen allergy. You should know there are many plants whose pollen grains are responsible for pollen allergy. Clear, student? The common one, I have a plant with me. You can see this is a very common plant called as the पार्थेनियम. क्लियर? गाजर घास और कैरेट ग्रास ये इंडिया में बाहर से आया था along with the wheat grains. अमेरिका से इंडिया में एक बार इंपोर्ट हुआ था व्हीट, उसके साथ इसके सीड्स आ गए थे 1936 में. तब से लेके अब तक स्टूडेंट ये हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक वीड साबित हो चुका है. क्लियर? सो पॉलेंस ऑफ दिस पार्थेनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, क्लियर, एंड ब्रोंकाइटिस. क्लियर? And there are many plant species. Clear? You can see here. Clear? जैसे Parthenium I have told you, then members of Gramineae family, grass family, Poaceae family like Cynodon, Digitaria. Clear? Then Xanthium, Ambrosia, Artemisia और Amaranthus, then Chenopodium. ये सारे ऐसे पौधे जिनके pollen grains student they are responsible for causing pollen allergy. Clear? एक जनरल सिम्टम होता है राइनाइटिस, रनिंग नोज, वाटरी आईज, स्नीजिंग, हे फीवर. दिस इज ऑल या दीज सिम्टम्स ऑल बिकॉज ऑफ द पॉलन एलर्जी. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है. ये आप याद रखिएगा, ब्रोंकियल अस्थमा, क्लियर, एंड ब्रोंकाइटिस. क्लियर? तो दिस इज अबाउट द पॉलन एलर्जी. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द importance of pollen grain from health point of view, student. It is said that the pollens are rich in the nutrients. So nowadays in western countries the people are using pollen tablets and pollen syrups to enhance the stamina. Especially the athletes are using the pollen tablets and the syrups. Even the race horses also, रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं उनको भी ये पिलाया जाता है, टैबलेट खिलाए जाते हैं to enhance their performance or to enhance their, you can say, stamina. Clear? So this is about the importance of the pollen grain. Clear, student? अब बारी आती है वायबिलिटी के ऊपर कि एक pollen grain कितने समय तक वायबल रहता है. क्लियर? कितने समय तक जिंदा रहता है, सीधी सीधी भाषा में बात करें तो एज पर रूल जब पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होते हैं तो इमीडिएटली दे शुड गो टू द स्टिग्मा, यानी एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन उसको तुरंत चले जाना चाहिए. क्लियर? और पॉलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी जो होता है स्टूडेंट किसी किसी में आप विद इन 30 मिनट्स लूज कर देता है. यानी राइस और व्हीट को आप देखोगे, व्हीट एंड राइस, तो इन प्लांट में दे रीच टू द स्टिग्मा विद इन 30 मिनट्स. Otherwise 30 मिनट के बाद they lose their viability. There are many plants of the family Rosaceae, Leguminaceae, Solanaceae where the pollen grains they retain their viability up to months. किसी किसी में साल भर भी pollen grains अपनी viability retain करके रखते हैं स्टूडेंट्स. Clear? तो this is about the viability and you should know that the viability of the pollen depends on the temperature and the humidity. ये दो important factor हैं जो pollen की viability को control करके रखते हैं. Suitable temperature and humidity. Clear, student? So as per NCERT I have covered almost all the contents. Clear? थोड़ा सा एक टॉपिक छोटा सा रह गया, that is the cryopreservation. Here जैसे हम लोग एनिमल में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए स्पर्म को हम लोग स्पर्म बैंक में प्रिजर्व करके रखते हैं, इन द सेम वे द पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड इन द पॉलन बैंक्स. ये एक्सिटू कंजर्वेशन में आता है स्टूडेंट. दिस इज द क्रायो प्रिजर्वेशन. जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन उस वाले चैप्टर में भी आप देखोगे कि एक्स सिटू इन सिटू कंजर्वेशन दो होता है, उसमें भी थोड़ा सा क्रायो प्रिजर्वेशन का जिक्र है. तो pollen grains of the rare species and pollen grains of the endangered species and pollen grains of the good species they are well preserved in the pollen bank at -196 degree centigrade in the liquid nitrogen. याद रखिएगा लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको वेल प्रिजर्व करके रखा जाता है. क्लियर स्टूडेंट? तो ये मैंने आपको बताया
किसके बारे में स्टूडेंट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ा, ये आपने देखा। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी मैंने आपको बता दिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सक्सेसिव टाइप एंड साइमल्टेनियस टाइप। ये आपके कोर्स में नहीं है बट यू शुड नो। क्लियर? देन टाइप्स ऑफ पॉलन टेट्रेड मैंने आपको बता दिया, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। नाउ दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन, किस तरह से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। अगर डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछेगा तो यू हैव टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स। क्लियर? एंड दीज टू डायग्राम्स आर शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन। यहां पे आपको हाईलाइट करना है एक्साइन के बारे में और इंटाइन के बारे में। The chemical nature of exine is sporopollenin. The chemical nature of intine is cellulose plus pectin. Clear student? और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, आपको जानना चाहिए। जैसे when we talk about the compound pollen, तो compound pollen क्या होता है? जनरली pollen grain 4 के ग्रुप में होते हैं, टेट्रेड, लेकिन कभी कभी they are in the group of 8 to 64. So these are called as the compound pollen grain. Clear? और मेरे पास एक पौधा है स्टूडेंट, आप देखोगे ये पार्थिनियम, ये दैट इज द कैलोट्रोपिस, मदार का पौधा है। यहाँ पे एक खास चीज आपको देखने को मिलती है, आप देखोगे कि इसके फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर में वो बंद रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनियम। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ पॉलिनियम का डायग्राम, आप इजिली देख सकते हो पॉलिनियम कैसा दिखता है। इस तरह से दो बैलून लाइक पाउचेस होते हैं स्टूडेंट, दीज टू आर द पॉलिनियम, और इसके अंदर हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन बंद रहते हैं। दीज आर द पॉलिनियम। तो कभी कभी ये भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, बिकॉज दिस इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, तो नीट में तो नहीं पूछेगा, लेकिन दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज अबाउट द पॉलिनियम। सो with this I conclude my lecture on today's topic. Clear student? I hope that you are able to understand whatever the content I have delivered to you. Clear? जो कुछ भी आपको बताया गया है स्टूडेंट आप अच्छे से समझे हो। इस वीडियो को आप लोग आराम से 2 बार 3 बार आप रिपीट करके देखना। ठीक? कंटेंट इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर? और एनसीईआरटी के सारे कंटेंट्स को मैंने इसमें कवर कर दिया है रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर के बारे में मैंने आपको बताया अच्छे से, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आपको मैंने रिपीट कराया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपने देखा, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन आपने देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन देख लिया आपने, पॉलन एलर्जी के बारे में आप जान गए। ठीक? पॉलन टैबलेट्स के बारे में आप जान गए, क्रायोप्रिजर्वेशन के बारे में आप जान गए। दिस मच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। क्लियर स्टूडेंट? आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू understand the contents which are delivered to you. Clear student? Now in the coming video I will explain the structure of the female reproductive organ, that is the carpel, and about the female gametophyte. जो बाकी का पार्ट है इसका we will discuss in the coming video student. Till then student, keep on watching my videos on my YouTube channel. Please like it, share it, subscribe it, and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.